we will get into heaven. तो आज की सुबह हम स्वर्ग में चलते हैं। Last week we learned what heaven means to me. पिछले सप्ताह में हमने देखा कि स्वर्ग मेरे लिए क्या Today है। we learn about the truth about heaven. आज हम स्वर्ग के विषय में सच्चाई सीखेंगे। I got the word no tears in heaven. मुझे वो शब्द मिले, स्वर्ग में कोई आंसू नहीं। I got the word there is no sorrows in heaven. मुझे वो शब्द मिले कि स्वर्ग में कोई दुख नहीं। I got the word there is no pain in heaven. मुझे वो शब्द मिला, सुनाई दिया कि स्वर्ग में कोई दर्द नहीं। Hallelujah. No pain कोई दर्द नहीं, and no sorrows कोई आंसू नहीं, and no sorrows कोई दुख नहीं, and no tears. और कोई आंसू नहीं। No tears, कोई आंसू नहीं, no sorrows कोई दुख नहीं, and no pain. और कोई दर्द नहीं। This is what God has designed heaven for us. तो वही हमारे लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ You know, है। when we are on the earth, जब हम धरती पे हैं, sometimes in grief the tear comes. कभी कभी दुख से हमारे आंसू बहते हैं। Sometimes when you are going through pain, the tear comes. कभी कभी जब दर्द से गुजरते तो आंसू निकलते हैं। Sometimes when we regret about some things, the tear comes. कभी कभी किसी चीज का पछतावा होता है तो आंसू निकलते हैं। Sometimes in sympathy, the tear comes. कभी किसी के लिए सिंपैथी दिखाते हैं तो आंसू आती है। Sometimes in weariness, the tear comes. कभी कभी थकावट से आंसू निकलते हैं। Sometimes you're overburdened, the tear comes. कभी कभी बोझ ज्यादा होता है तो आंसू निकलती है। Sometimes when you get anger, the tear comes. कभी कभी गुस्सा ज्यादा आता है तो आंसू निकलते Sometimes हैं। in fear, the tear comes. कभी कभी डर से आंसू निकलते हैं। Sometimes in relief of something happened, joy. Through that joy, the tear comes. कभी कभी कुछ ऐसी बात घटती है जिसके कारण जो है कुछ बात घटती है जिससे तुम्हें कुछ आराम मिलता है तो खुशी के कारण आंसू भी If you निकलते see हैं। the mother in the labor ward, अगर माँ को देखेगी जो लेबर when के वार्ड she में is रहती है, naturally delivering the baby, जब वो नैसर्गिक रूप से बच्चे को so जन्मती है, much of pain, इतने दर्द में रहती so है, much of pain. कितना दर्द होता है That उसे। kind of that kind. Once the child is delivered, she will be in tears because of that relief. देखो एक बार जब बच्चा जो है को जन्म लेती है तो फिर उसके आंखों से आंसू बहती है क्योंकि उसे अभी वो आराम मिल गया उसके And दर्द that से, pain was so horrible. क्योंकि वो दर्द बहुत ही ज्यादा था। And sometimes it comes in joy. The tear comes in joy. कभी कभी ये आंसू खुशी के रहते हैं। But prophetically, I want to talk to you. But the day is coming for those who know Jesus, where there will be no tears. भविष्यवाणी के रूप में कहता हूँ जो यीशु मसीह को जानते हैं एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे कोई आंसू नहीं Come on, रहेंगे। somebody shout hallelujah for this. कोई तो इसके लिए हालेलुया Say with चिल्लाए। me, my day is coming. कहो मेरा दिन आ रहा For है there will be no tears because Jesus is, I will be with Jesus. क्योंकि कोई आंसू नहीं रहेंगे क्योंकि मैं यीशु के साथ में I रहूंगी। know Jesus, मैं यीशु को जानती so हूँ tear is minus. तो इसलिए कोई आंसू नहीं। And today I want to tell you, there are so many songs. Yesterday I was discovering about there is no tears in heaven. कल मैं यही वो डिस्कवर कर रहा था कि बहुत सारे गीत हैं उस विषय में कि स्वर्ग में कोई आंसू नहीं। You know, the tears will never stain the street of the city in heaven. स्वर्ग का जो नगर है, शहर है और वहाँ के सड़क कभी भी आंसू से गंदे नहीं होंगे, मैले नहीं होंगे। Oh, I was listening to that song. So beautiful it was. वो गीत को मैं सुन रहा था, But बहुत सुंदर also गीत है। God's word confirms us in the book of Revelation chapter 21. तो परमेश्वर का वचन हमें कंफर्म करता है प्रकाशित वाक्य का 21 If you अध्याय read में। the Revelation chapter 21 1 to 4, अगर प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय 1 से 4 यदि तुम पढ़ोगे, he says, then I saw a new heaven and the new earth, for the first heaven and the first earth passed away and there is no longer any sea. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग में परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए। What does it mean? John already saw the heaven is ready. यानी उसका मतलब क्या, यूहन्ना ने पहले से देखा कि स्वर्ग तैयार है। And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them, and he will wipe away every tear from their eyes, and there will be no longer be any death, there will be no longer
be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. और फिर मेरे सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंसुओं में से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, ना शोक, न विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रहेगी। Now my question this morning is why there will be no tears there? तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर कोई आंसू क्यों नहीं रहेंगे? Because in heaven the heart will never break. क्योंकि स्वर्ग में दिल नहीं टूटेगा। Come on, somebody say, here on the earth your heart will break, your emotions will break, there is pain, there is sorrows, every time you're crying, because there is no chance in heaven the heart will be broken. यहाँ पर पृथ्वी पे जो है तुम्हारा दिल टूट जाएगा, यहाँ पे दुख पीड़ा आएगी और फिर तुम रोते रहेंगे, लेकिन स्वर्ग में न कोई पीड़ा, ना कोई शोक, ना कोई दुख रहेगा और वहाँ पे रोना बिल्कुल नहीं रहेगा। So we will work on this morning. आज इसके ऊपर हम कार्य There will be करेंगे। no tears in heaven because स्वर्ग में कोई भी आंसू नहीं रहेंगे। number one, there will be no sorrows. क्योंकि वहाँ पे कोई दुख नहीं Hallelujah. रहेगा, शोक नहीं The रहेगा। Bible says no mourning nor crying. बाइबल कहता है कि पवित्र शास्त्र कहता न कोई शोक न विलाप। What is the word mourning means? शोक करने का मतलब The क्या है? mourning means lament or wail. शोक का मतलब है एकदम दुखी होना, एकदम दुख से रोना। You're groaning. यानी बहुत ही पीड़ा में दुखी होकर It is a रोना। strong and deep grief inside you. यानी एक ऐसा बहुत ही मजबूत एक बड़ा दुख है जो अंदर से So है, that is called mourning. उसे कहते हैं शोक So what is करना। the word cry means? रोने का मतलब क्या है? Cry means uproar. रोने का मतलब है आवाज निकालना, Hallelujah. Loud shout. जोर से आवाज। Not gentle weeping. Crying means not gentle weeping. रोने का मतलब है ये नहीं कि बहुत ही छोटे आवाज में रोना, But gut wrenching outcry. यानी वो एक ऐसे बहुत जोर जोर से विलाप करना। Hallelujah. I don't know how to cry, but I can cry and show you acting. मैं रोने नहीं जानता हूँ लेकिन एक्टिंग करके दिखा सकता हूँ। Literal cry, loud cry. यानी सचमुच में जोरों से रोना। Means mourning means strong deep grief or lamenting. शोक का मतलब है अंदर से एक बड़ा दुख है The word cry means और रोने का विलाप का you मतलब can है call clamor or uproar. या वो कह सकते हैं कि विलाप करना है, उसका मतलब हाँ, है कि cry. जोरों से loud चिल्ला shout. चिल्ला के रोना, Wrenching out cry. एक ऐसा विलाप जो जोरों से आवाज करके So चिल्लाना। let us see these things as we discover why there is no tears in heaven. तो आइए इस बात को देखेंगे कि जैसे हम स्वर्ग को अभी खोज करेंगे कि क्यों स्वर्ग में कोई आंसू नहीं। Now I hope you understood no mourning, no cry. अभी तो आप समझ गए कि कोई रोना नहीं है ना पीड़ा करना